Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this video is about class 11th. So as you know, we have discussed algorithm and flowchart with different problem with the chapter 4. Okay, so let us now move a step further and create program using new version of Python. Okay, but before learning about Python programming language, let us understand what is programming language and how it works. Okay, so here it is written an order to set of instruction to be executed by a computer to carry out a specific task is called program. In a very simple example, beta, a simple set of instruction which be executed by a computer to complete a task is called a program, or simple as a computer program. Okay, when a computer follow a set of instruction to complete any job, to complete any task, to complete any work is known as computer program. Okay, and the language used to specify this set of instruction to the computer is called programming language. बेटा सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया है कि जो भी लैंग्वेज हेल्प करती है हमें उस तरह के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए उन उन सभी लैंग्वेज को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो बेटा इफ एनीबॉडी आस्क टू यू व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, you simply reply programming language help us to write program. Okay, nothing else. Programming language help us to write computer program or set of instruction which is followed by the computer and complete any task. Okay, okay beta. So as we know that computer understand the language like 0 and 1s. Yes, ओके, कंप्यूटर क्या समझता है बेटा, जीरो और वन की लैंग्वेज समझता है, विच ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज बिकॉज कंप्यूटर इज अ मशीन, और लो लैंग्वेज यू कैन से. However, it is difficult for a human to write a instruction using 0 and 1s. Yes, it is. एक्चुअल में जब अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन 0 और 1 में बहुत डिफिकल्ट होगा कंप्यूटर के लिए लिखना, सो at that case we use high level language. Okay, so high level language is also known as a programming language which is look like a English language. I'm not saying beta programming language is an English language. Programming language is look like a English language. Yes, look like means the syntax which is available on programming language is very similar to the English language. That is why we can easily understand the programming language. Simple. Okay, so here we can see the different kind of programming language like Python, like C++, like Visual Basic, PHP, Java, etc. many more. Okay, nowadays different programming language are used by different programmers for their different requirements. Okay, or to generate or to create a computer program. So because human cannot understand the low level language or machine language simply. Okay, so human can understand the human language like Hindi, English, Tamil, Marathi, right? So but we are not the machine, we cannot understand the machine language. Okay, so programming language help us to write computer program, okay, for the computer. Okay, so let's understand a program. A program written in a high level language is called source code. बेटा ये source code क्या है? Let understand. ठीक है, whenever we use any programming language, okay, to write a set of instruction, that instruction known as what? Source code. Okay, okay, so recall from the chapter 1 that language translators like compiler and interpreter are needed to translate the source code. Means यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मीन्स अब यहाँ पे एक सिंपल सा एनालॉजी है, इसको समझिए आप. देखिए जब कंप्यूटर समझता है हमारा क्या, लो लेवल लैंग्वेज लाइक बाइनरी लैंग्वेज जिसको हम 0 और 1 कहते हैं. ठीक है, एंड वी आर राइटिंग व्हाट, सोर्स कोड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, बिकॉज कंप्यूटर यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज समझ रहा है 0 1 एंड वी आर राइटिंग प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव नाउ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव इज here we use interpreter or compiler. Okay, interpreter or compiler which convert our high level code into the machine code. Simple. Okay, so यहाँ पे क्या होता है बेटा,
इंटरप्रेटर और कंपाइलर का रोल आता है, ठीक है ना। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर plays a very important role to convert any programming language code into the machine level language code or binary code, okay, so that it can be understood by the computer, okay. So an interpreter process the program statement one by one, okay, first translating and then executing का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे, to execute का मतलब to run, okay. This process is continue until the error is encountered. इसका मतलब क्या होता है, ये प्रोसेस कब तक होता है, जब तक कि कोई प्रोग्रामिंग का एरर नहीं आता है, और होल प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। इन बोथ द केस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल स्टॉप, ओके। सो यहाँ पर क्या बेटा हमने देखा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का रोल क्या है। देखिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं, हम प्रोग्राम लिख रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, और कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है क्या, लो लेवल लैंग्वेज जो कि बाइनरी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर कंपाइलर क्या करता है, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को उठाता है और उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, सिंपल। और इस तरह से कंप्यूटर हमारा कोई भी प्रोग्राम आसानी से उसको समझता है, ठीक है, और एक वैल्यूबल क्या जनरेट करता है, एक आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विद द फीचर ऑफ पाइथन बेटा। अब यहाँ पर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पाइथन। अब पाइथन आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि अगर आपको पाइथन पर प्रोग्रामिंग लिखनी है तो पाइथन का आपको इंटरप्रेटर चाहिए, पाइथन का आपको एडिटर चाहिए जहां पे आप प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल एक मैसेज दिया हुआ है। सो पाइथन के लिए www.python.org पर आपको जाना है, वहां से आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वेबसाइट है, ये देखिए ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाना है और पाइथन में जहां पे डाउनलोड ऑप्शन लिखा हुआ है वहां पे जाएंगे। जैसे आप डाउनलोड ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे रिलीज आपको मिलेंगे, और उसमें से आप देखेंगे जब आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो डाउनलोड फॉर विंडोज, यहाँ पे देखिए पाइथन 3.8.5, ये आपको रिलीज क्या करना है, सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके सिंपल स्टेप में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यू विल गेट एडिटर एज वेल एज इंटरप्रेटर बोथ, जहां पे आप प्रोग्राम लिख सकते हैं और प्रोग्राम का आउटपुट भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने फीचर्स की। सो बेटा यहाँ पर पाइथन है क्या, ठीक है, पाइथन के बारे में थोड़ा समझते हैं, पाइथन है क्या। तो पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज, सिंपल। ये देखिए इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स मींस एनीवन कैन एक्सेस दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, सिंपली यू कैन डाउनलोड इट एंड स्टार्ट योर प्रोग्रामिंग, okay, start writing your application. It is an interpreted language as Python programs are executed by an interpreter, means it is interpreter language का मतलब क्या हुआ बेटा, this source code is interpreted not compiled, okay, line by line it is interpreted, okay. Python programs are easy to understand as they have a clearly defined syntax and relatively सिंपल स्ट्रक्चर। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं ना सिंपल, उसी तरह से पाइथन लैंग्वेज भी है। सो डोंट वरी अबाउट द सिंटैक्स, इट इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ओके। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे जैसे कि हम अल्फाबेट में देखते हैं, एक हमारा स्मॉल अल्फा लोअर केस होता है, एक अपर केस होता है, ठीक उसी तरह से केस सेंसिटिव का मतलब अगर आपने नंबर लिखा है कैपिटल में तो इट इज एक्सेस बाई नंबर एज अ कैपिटल, मींस इस कैपिटल लेटर में ही आपको उसको एक्सेस करना पड़ेगा। से तो नंबर कैपिटल में और नंबर स्मॉल में आर टू डिफरेंट थिंग, ओके। सो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ बेटा कि अपर केस का जो कैरेक्टर होगा और लोअर केस का जो कैरेक्टर होगा, भले ही उसका दोनों का मीनिंग, दोनों का स्पेलिंग वर्ड का सेम हो, फिर भी वो दोनों अलग अलग पहचाने जाएंगे पाइथन के अंदर, इसलिए इसको केस सेंसिटिव बोलते हैं। Python is a portable and platform independent। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि जो भी हम एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग लिखेंगे या प्रोग्राम लिखेंगे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम पर आसानी से रन कर जाएगा, मींस इट कैन रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, यानी कि कोई स्पेसिफिक
आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए पाइथन के लिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप पाइथन के एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ठीक है। नाउ पाइथन हैज अ रिच लाइब्रेरी एंड प्री डिफाइंड फंक्शन। अब रिच लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? रिच लाइब्रेरी का मतलब होता है वास्ट लाइब्रेरी। वास्ट लाइब्रेरी का मतलब जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे आपका जो भी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो जाएगा। राइट। जैसे कि आपको एमएस वर्ड में क्या होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल मिलते हैं ताकि आप डॉक्यूमेंट क्या कर सके, क्रिएट कर सके। ठीक उसी तरह से पाइथन भी आपको बहुत सारी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। लाइब्रेरी सिंपल से होता क्या है, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं। ठीक है। लाइब्रेरी का मतलब होता क्या है, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है, जहाँ में हम बैठ के पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो इंग्लिश की लिटरेचर की हो, लैंग्वेज की हो, कंप्यूटर की हो, मैथमेटिक्स की हो, साइंस की हो, बायोलॉजी की हो, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स वहाँ पे आपको दिखने को मिलती है और वहां पे कोई भी जाके आसानी से चीजों को पढ़ सकता है। ठीक उसी तरह से पाइथन के अंदर भी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। सिंपल, अभी आपको समझने की जरूरत इतना ही है। पाइथन इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, किसी भी प्रकार का आप इंटरनेट एप्लीकेशन पाइथन से डेवलप कर सकते हैं। मेनी पॉपुलर वेब सर्विसेज एंड एप्लीकेशन आर बिल्ट यूजिंग पाइथन। ठीक है। जैसे कि हमारा गूगल, गूगल भी हमारा किससे लिखा गया है, पाइथन से लिखा गया है। यूट्यूब, यूट्यूब भी हमारा किससे लिखा गया है, पाइथन से लिखा गया है। तो पाइथन यूज आइडेंटिफिकेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। तो यहाँ पर बेटा हम इसको वन बाय वन करके सीखेंगे। ठीक है। अब वर्किंग विद पाइथन में, टू राइट एंड रन। टू राइट का मतलब राइट करना, लिखना प्रोग्राम को, रन का मतलब एग्जीक्यूट करना। सिंपल, टू राइट एंड रन अ पाइथन प्रोग्राम वी नीड हैव अ पाइथन इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर हमको चाहिए। ठीक है। जहां पे हम प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम को हम राइट करके उसका आउटपुट देखेंगे। तो वो कैसे आपको मिलेगा, मैं आपको सिंपल बता, जैसे भी अभी मैंने आपको बताया, python.org से आपको क्या करना, पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरप्रेटर दिखेगा। ठीक है। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कैसा होता है। So Python interpreter installed on a computer or we can use online Python interpreter। हमें Python ऑनलाइन भी मिलता है इंटरप्रेटर, जहां पर हम अपने प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं। ठीक है। मैं आपको वीडियो में ही आगे मैं बताऊंगा कैसे आप किसी भी पाइथन प्रोग्राम को ऑनलाइन भी आप रन कर सकते हैं। द इंटरप्रेटर ऑल्सो कॉल्ड अ पाइथन सेल। तो ये आपका जो इंटरप्रेटर है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, पाइथन सेल भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप सिंपल स्क्रीन का देख रहे हैं। मैं आपको अभी और दिखा दूं, जैसे मैं अगर मुझे इंटरप्रेटर चाहिए तो कैसा होगा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम गए और अपने पाइथन को हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है और हम यहाँ पे जा रहे हैं सिंपल सा पाइथन इंटरप्रेटर को ओपन करने, यानी पाइथन सेल को ओपन करने के लिए। ठीक है। ये देखिए बेटा, मैंने इसको क्लिक किया और देखो अभी हमारे पास पाइथन इंटरप्रेटर और पाइथन सेल आ गया। ठीक है। तो ये आपका पाइथन सेल और इंटरप्रेटर है, जहां पे आप प्रोग्रामिंग कोडिंग लिख सकते हैं। सिंपल, अगर मैंने लिखा 7 + 8 एंटर किया, देखिए 15 आ गया। जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन आप करते हैं, 4 × 5 आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। 80 ÷ 10 आपको आंसर मिल गया। ठीक है। तो बेटा इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। ठीक है। डोंट hesitate and don't worry about the syntax. Okay, I will explain each and everything very clearly to all of you. Don't worry about it. Okay, so let's go ahead. So यहाँ पे अपने हम किसकी बात की, हमने इंटरप्रेटर की बात करी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं एग्जीक्यूशन मोड की। अब बेटा यहाँ पे दो तरीके से हम प्रोग्राम अपना लिख सकते हैं। एक हमारा होता है, देयर आर टू वेज टू यूज पाइथन इंटरप्रेटर। दो तरीके से, एक होता है इंटरैक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। ठीक है। ये दोनों मोड हम कैसे यूज करते हैं मैं आपको प्रोग्रामेटिकली बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला आपका क्या होता है, इंटरैक्टिव मोड अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट। ठीक है, साइमल्टेनियसली। where script mode allows you to write more than one instruction in a file। अब सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटरैक्टिव मोड में और स्क्रिप्ट मोड में। ये देखिए बेटा, आपका जो पहला जो स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है इसको बोलते हैं आपका इंटरैक्टिव मोड। टू वर्क इन एन इंटरैक्टिव मोड वी कैन सिंपली टाइप पाइथन स्टेटमेंट ऑन दी फ्री फ्रॉम डायरेक्टली। देखो यहाँ पर हमने ये जो ओपन करके रखा हुआ है ये हमारा इंटरैक्टिव मोड है। ठीक है। जैसे मैंने सिंपल कहा, मैंने यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट दिया
प्रिंट हेलो पाइथन, हमने सिंपल सा क्या लिखा, हेलो पाइथन, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा हेलो पाइथन लिख कर आ गया मैसेज, ठीक है। हमने यहाँ पे 100 प्लस 200 एंटर किया, आपको आपका आउटपुट आ गया। तो ये आपका लाइन बाय लाइन आपका क्या हो रहा है बेटा, कंपाइल हो रहा है, इंटरप्रेट हो रहा है, यानी जो भी लाइन आप लिख रहे हैं, ठीक है, वो आपका इंटरप्रेट हो रहा है। ये आपका इंटरेक्टिव मोड है, इसको हम सेल भी कहते हैं। अब ये देखिए हमने एक ही लाइन लिखा था, है ना, आप यहाँ पे एक एक लाइन लिखकर आप अपने आउटपुट ला सकते हैं। अब एक और तरीके से हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं, उसके लिए हम स्क्रिप्ट मोड में जाते हैं। जैसे कैसे करेंगे हम, हमने यहाँ पर फाइल में जाएंगे और यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको ऊपर यहाँ पर अनटाइटल देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे पहले, कंट्रोल एस, ठीक है। हमने इस फाइल को सेव किया, हमने सपोज हमने लिख दिया हेलो डॉट पी वाई। अब ये देखो बेटा पी वाई क्या है, डॉट पी वाई का मतलब पाइथन एक्सटेंशन है। आपको पता है जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल स्टोर करते हैं या फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका एक एक्सटेंशन होता है। जैसे कि वर्ड फाइल का docx होता है, एक्सेल फाइल का xlx होता है, पीडीएफ फाइल का डॉट पीडीएफ होता है, टेक्स्ट फाइल का डॉट टीएक्सटी होता है, एचटीएमएल फाइल का डॉट एचटीएमएल होता है। ठीक उसी तरह से पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो हेलो डॉट पी वाई, जो एक्सटेंशन होगा क्या होगा, पी वाई। तो देखिए हमने यहाँ पर एक साथ बहुत सारे स्टेटमेंट लिखने, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर सिंपल नंबर 1 इज इक्वल टू 100, ठीक है, नंबर 2 इज इक्वल टू 200 एंड रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ओके। एंड देन प्रिंट, एक साथ कई लाइन हम लिख रहे हैं, प्रिंट। अब देखिए हमने यहाँ पे अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो कैसे लिखा जा रहा है वो बात की बात, अभी सिर्फ खाली मैं आपको सिर्फ खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर इज, अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया, कोलन लगाया और यहाँ पे कॉमा करके रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी। अब देखो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं F5 से। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है, ठीक है। स्क्रिप्ट मोड में हम अपने फाइल को .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं, .py से स्क्रिप्ट मोड में, और एक साथ कई लाइन हम लिख सकते हैं स्क्रिप्ट मोड में। रन में जाकर हम क्या करेंगे, रन जब रन करेंगे तो देखिए आपको सम ऑफ टू नंबर इज 300 दिखा रहा है, ठीक है। तो बेटा पहले ये तो ये जो हमारा वो कौन सा है, हमारा सेल है, जिसको कौन सा मोड कहते हैं, इंटरेक्टिव, ठीक है, इंटरेक्टिव मोड हुआ। और दूसरा हमारा जो है स्क्रिप्ट मोड हुआ, यानी कि जहां पर हम .py से अपने फाइल को सेव करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ दो तरह का मोड आपको मैंने बताया। तो बेटा प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है पाइथन की, ठीक है। अगर आप सीखना चाहें तो बेस्ट प्रोग्रामिंग अभी तक की जो मैंने अभी देखी है अपनी लाइफ में, सबसे इजीएस्ट प्रोग्रामिंग वो पाइथन है। बिलीव मी बेटा, मैंने स्टार्ट किया हाई लेवल लैंग्वेज जावा से, और जावा से की तुलना में बहुत सारी लैंग्वेज जो बहुत टफ मानी जाती है। मैंने जो अभी तक लैंग्वेज जो देखी है, पाइथन इज द इजीएस्ट लैंग्वेज आई हैव सीन एवर, ओके। So it have very simple syntax. Simply you can learn and write your program. Okay. So यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट मोड क्या कहता है, स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट प्रोग्राम अ फाइल एंड सेव इट बाय द यूज द इंटरप्रेटर और एग्जीक्यूट इट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाइल के नेम के बाद .py एक्सटेंशन डिफॉल्ट में आपको ला जाता है, ठीक है बेटा। तो दो तरीके से आप पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे देखो बताया गया कैसे, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया वो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइथन के कीवर्ड्स की। अब यहाँ पर कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 26 कैरेक्टर्स हैं, जिसको हम अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। 26 अल्फाबेट्स हैं और उन्हीं अल्फाबेट्स का यूज करके हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, फिर उनको और क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, फिर पैराग्राफ लिखते हैं, फिर और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपना लिखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो 26 हमारे अल्फाबेट हैं वो हमारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। ठीक उसी तरह से बेटा पाइथन लैंग्वेज
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ प्री डिफाइंड क्या है, कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और उन कीवर्ड्स का यूज करके हम क्या लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं। तो कीवर्ड आर द रिजर्व्ड वर्ड, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में स्मॉल एबीसीडी, कैपिटल एबीसीडी, है ना, ये क्या रिजर्व्ड कैरेक्टर्स हैं, इनका कुछ मतलब है, उससे कुछ वर्ड्स हैं उनके, है ना, उनका कुछ मीनिंग है रिजर्व्ड। जैसे कि हमने सिंपल मैंने बोल दिया, सो आई मीन्स मैं, वी हम, यू तुम, इनका कुछ स्पेसिफिक मतलब है। ठीक उसी तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ रिजर्व्ड वर्ड हैं और उनका भी कुछ मायने हैं, उनका कुछ मतलब है, जिनका यूज हम प्रोग्रामिंग में करते हैं। ईच कीवर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग टू द पाइथन इंटरप्रेटर, ओके, and we can use a keyword in our program only for the purpose for which it has been defined, okay, simple। जो भी हमने डिफाइन, अब यहाँ पे कितने ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, फॉल्स, क्लास, कंटिन्यू, फॉर, लैम्डा, ट्राई, ट्रू, डिफाइन, ठीक है, इफ एल्स, ठीक है, ग्लोबल, नॉट, राइट, दीज आर द सिंपल हमारे क्या कीवर्ड्स हैं बेटा। नेक्स्ट, कीवर्ड समझ में आया। कीवर्ड्स क्या होते हैं, सिंपल हमारे क्या प्री डिफाइंड हमारे क्या है, वर्ड्स है। यहाँ पे देखो क्या लिखा, कीवर्ड आर द रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड का मतलब पहले से बनाए गए, इनबिल्ट, इनबिल्ट वर्ड हैं जो कि पाइथन के लिए क्रिएट किए गए हैं और उनका यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा आइडेंटिफायर्स की। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थिंग है, इसको आपको बहुत अच्छे समझना है। आइडेंटिफायर क्या होता है, अब एक सिंपल सा मैं आपको एनालॉजी बताने जा रहा हूँ। जैसे एक स्कूल के अंदर या एक क्लास के अंदर, एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एक स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसको हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके क्लास से, ठीक है। अब मैंने पता कर लिया कि एक स्टूडेंट का नाम है अमित और वो क्लास 10th का है, ठीक है। अब क्लास 10th में बहुत सारे अमित हो सकते हैं, अमित वर्मा के नाम से बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं क्लास 10th के अंदर। तो हम उसको सिंपली आइडेंटिफाई, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके हम रोल नंबर से या फिर एडमिशन नंबर से हम सिंपली क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिंपल जिस तरह से हम एक स्कूल के अंदर किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए या तो उसके नाम से या उसके रोल नंबर से पहचानते हैं, ठीक उसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी प्रकार का जो आप वर्ड या कीवर्ड या कुछ भी अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर से हम किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को, वेरिएबल को, क्लास को आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को आसानी से पहचान पाएं। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर आर द नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटीज इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को, फंक्शन को, क्लास को, ठीक है, और अदर एंटिटीज को पहचानने के लिए जो हम शब्द लिखते हैं, जो वर्ड्स लिखते हैं, वो हमारा क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। द रूल फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर इन अ पाइथन आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे रूल क्या है बेटा, अब मैं रूल की बात करता हूँ। देखो जैसे अब जब हम बैंक में जब कोई अकाउंट नंबर हम जब लिखा जाता है किसी भी बैंक का, तो उनका एक स्पेसिफिक सीरीज होती है, उनको रूल कहा जाता है। उस रूल से ही उस बैंक के अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबर लिखे जाएंगे या फिर बनाए जाएंगे। या हम बात करते हैं पैसेंजर डिटेल्स की। पैसेंजर डिटेल्स में जो पैसेंजर आईडी होगा उसका भी कोई रूल होगा, जिसको एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से डॉक्टर का कोड होता है, एम्प्लॉय का कोड होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो रूल बनाए जाते हैं किसी भी आइडेंटिफायर को, ठीक है, लिखने के लिए, यहाँ पर भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अगर आपको प्रोग्राम के अंदर कुछ आइडेंटिफायर, ठीक है, लिखने हैं तो उनके कुछ रूल्स हैं। वो नियम क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। पहला नियम क्या है, A name should begin with an uppercase or lowercase alphabet or an underscore sign। सिंपल सा मतलब ये हुआ है कि अगर कोई भी आइडेंटिफायर आप लिखने जा रहे हैं तो वो स्टार्ट किससे होगा, या तो अपर केस से या लोअर केस से होगा, या तो एक अंडरस्कोर साइन से होगा, अंडरस्कोर साइन। इसके अलावा और किसी चीज से भी आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दिस में बी फॉलोड बाय एन कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, 0 to 9 और अंडरस्कोर, ठीक है। 10
एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद जीरो डिजिट। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी आइडेंटिफायर को किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर हमारा एक आइडेंटिफायर हुआ, स्टूडेंट नेम हमारा एक आइडेंटिफायर हुआ, सैलरी हमारा एक आइडेंटिफायर हुआ, ठीक है, सिटी इट इज आवर आइडेंटिफायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आइडेंटिफायर को हम कैसे स्टार्ट करते हैं। इट कैन बी एनी लेंथ, अब यहाँ पे लेंथ कितनी होनी चाहिए, इट कैन बी एनी लेंथ, हाउएवर इट इज प्रीफर्ड टू कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। यहाँ पे एक कन्वेंशन है जो हमें फॉलो करना चाहिए। वो कन्वेंशन क्या है कि हमें शॉर्ट में कोई आइडेंटिफायर का नाम लिखना चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड, और आइडेंटिफायर क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी रिजर्व्ड वर्ड और कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे पाइथन में ऑलरेडी डिसाइड किए गए हैं या इनबिल्ट बनाए गए हैं। वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल लाइक एक्सप्लेनेशन मार्क, एट द रेट सिंबल, हैश, डॉलर, ये हमारे क्या है, पंक्चुएशन हैं, इनका यूज नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड एन एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन द 3 सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो मैंने इसका आपको एक एल्गोरिथम भी बताया था और इसका मैंने आपको एक फ्लो चार्ट भी बताया था, कैसे आप किसी भी नंबर्स का एवरेज कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग के अंदर आइडेंटिफायर कैसे डिसाइड किया गया। वी कैन चूज आइडेंटिफायर एज मार्क 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 एंड एवरेज एबीजी rather than ABC और ABC, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो ये भी हमारे आइडेंटिफायर हो सकते हैं, लेकिन ये आइडेंटिफायर उतने डिस्क्रिप्टिव नहीं है जितने कि हमारे मार्क्स 1, मार्क्स 2 और मार्क्स 3 एंड एवरेज हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है जो हमारे आइडेंटिफायर होंगे वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट एंड मीनिंगफुल होने चाहिए, ये कन्वेंशन है, ठीक है। अब देखिए अब हम जा रहे हैं आइडेंटिफायर को लिखने के लिए। अब आइडेंटिफायर को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, चलिए अपने पाइथन में जाते हैं और यहाँ पर हमने अब यहाँ पे आइडेंटिफायर लिखेंगे। जैसे मैंने आइडेंटिफायर पहला लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा नंबर, ठीक है। अब देखिए नंबर ये हमारा एक आइडेंटिफायर है। अब इस नंबर को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 10, ठीक है। अब देखिए मैंने दूसरा जो नंबर लिया उसको एक डिजिट से स्टार्ट किया, 2 नंबर इज इक्वल टू 50। अब देखिए पहले तो हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं। 10 को हमने सिंपल सा प्रिंट कराया। देखिए प्रिंट के लिए हमने सिंपल क्या लिखा, प्रिंट, और यहाँ पे नंबर की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बताने जा रहा हूँ आइडेंटिफायर के रूल। मैंने यहाँ पे एक आइडेंटिफायर लगाया है जो कि वेरिएबल है, मैं भी बताऊंगा आगे वेरिएबल होता क्या है। फिलहाल अब ये समझिए कि नंबर हमारा एक आइडेंटिफायर है और उसको मैंने 10 असाइन किया है। अब मैं इसको सिंपल मैंने क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद क्या देखिए आपको आउटपुट क्या आया, 10 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 10 दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे 10 दिख रहा है। अब देखिए अगर इसी आइडेंटिफायर को मैंने इसके पहले मैंने 100 लगा दिया, देखिए मैं नंबर से पहले मैंने क्या लिख दिया 100, अब उसके बाद इसको सेव करके मैंने इसको रन किया, तो देखिए यहाँ पर एक इनवैलिड सिंटैक्स आ गया। ये क्यों बता रहा है, ये क्या कह रहा है, ये इनवैलिड सिंटैक्स है। अब देखो बेटा मैंने आपको बताया था कंपाइलेशन कब तक होता है, जब तक कि कोई एरर ना आए या आपका कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो जाए, ठीक है। तो कंपाइल हुआ, कंपाइल होने पर एक इनवैलिड सिंटैक्स है, इसका मतलब क्या, सिंटैक्स जो आपने लिखा है वो गलत लिखा है। क्यों, क्योंकि आपने आइडेंटिफायर का नाम कहाँ से किससे स्टार्ट किया है, डिजिट से स्टार्ट किया है। ये देखिए अब मैंने क्या किया, आइडेंटिफायर का में कोई स्पेशल कीवर्ड जैसे कि मैंने हैश है, डॉलर है, ठीक है, एंड सिंबल है, ये अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू 10 लिखा, फिर इसको रन किया, सेव किया, इसको F5 करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेम एरर आ गया बेटा, नेम एरर क्या, नंबर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, एरर देखने को मिल रहा है आपको, ठीक ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। एक चीज और, नंबर 10, ये हमने 10 करके हमने यहाँ पे नंबर 10 इज इक्वल टू 10 लिखा, ठीक है। अब देखो दो आइडेंटिफायर के बीच में एक मैंने स्पेस लिख दिया, स्पेस आ गया।
अब स्पेस भी नहीं होना चाहिए, ये हमारा रूल है, ठीक है। इसी रूल को आपको समझना है, आइडेंटिफायर के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। अब इसको मैंने कंपाइल किया तो देखिए सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके सेव किया, अगेन एक एरर आ गया, ठीक है। तो अगर इस स्पेस को चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं। अंडरस्कोर लगाएंगे तो आपका क्या होगा, आपका ये आइडेंटिफायर वैलिड हो जाएगा और इसको आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। सेव करके रन करेंगे तो आपको ये आउटपुट 10 देगा, ठीक है। तो आइडेंटिफायर बेटा होता है कि आपको एक प्रोग्राम के अंदर जो भी आपको सिंटैक्स लिखने हैं, ठीक है, चाहे वो वेरिएबल का हो, चाहे वो फंक्शन का हो, चाहे वो क्लास का हो, ठीक है, हमारे ऑपरेटर्स हो गए, ठीक। तो वेरिएबल को लिखने का जो तरीका है वो आपको आइडेंटिफायर ही बताता है। अब वेरिएबल मैंने वेरिएबल के ऊपर मैंने बताया कि वेरिएबल है क्या। अब वेरिएबल क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। सो अ वेरिएबल in a program is uniquely identified by a name is known as identifier। अब देखो आइडेंटिफायर यहाँ पर आ गया, आइडेंटिफायर आ गया ना बेटा। अब जैसे अब इसको मैं समझाता हूँ आपको, जैसे आप एल्गोरिदम में या फिर जब आप अलजेब्रा में x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज आपको फाइंड आउट करना है। अगर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 4 है, ठीक। तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 4, इसका मतलब क्या, x here is a variable which contains the value 5 and y here is a variable which contains the value 4, right। तो y and x here the variable, जैसे आप एल्गोरिथम जैसे आप अलजेब्रा में पढ़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे क्या है, वेरिएबल वो आइडेंटिफायर होते हैं जो कि डेटा को होल्ड करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। A variable in a program is uniquely identified by a identifier, by a name or identifier. Variable in Python refer to an object, an item or element that is stored in the memory, ठीक है, जो कि क्या होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। अब मैं आपको सिंपल इसका एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं। जैसे इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं और हम चलते हैं एक नया अपना पाइथन का इंटरेक्टिव मोड जिसको हम सेल कहते हैं, उसको ओपन करने। पाइथन 3.8 यहाँ पे हमने इसको सेल को ओपन किया। अब बेटा हम वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। अब वेरिएबल का नाम क्या होगा, जो आइडेंटिफायर के रूल्स हैं। क्या रूल है कि स्टार्ट किससे होना चाहिए, अपर केस से या लोअर केस से। तो मैंने एक स्टोर किया सपोज एज। अब देखो लोअर केस से मैंने आइडेंटिफायर लिया, एज इज इक्वल टू 25। अब देखो एज इज इक्वल टू 25, यहाँ पे एज क्या है, इज अ वेरिएबल विच स्टोर 25 और इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो करता क्या है, राइट हैंड साइड से वैल्यू को असाइन करता है लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पर एज को प्रिंट करेंगे, एज लिखेंगे और एंटर करेंगे, आपको एज के अंदर की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं एज का आईडी चेक करने। देखिए हमने आईडी एक फंक्शन है जो बताएगा एज का आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का आईडी क्या है, ये देखिए बेटा इस ऑब्जेक्ट का आईडी क्या है, ये दिखा रहा है, ठीक। उस तरह से हमने कैपिटल एज में लिखा, कैपिटल एज AGE। अब इज इक्वल टू मैंने 50 लिखा, एंटर किया। अब एज यहाँ पे लिखा कैपिटल में, यहाँ पे देखिए 50 आ रहा है। अब इसका आईडी हम चेक करते हैं, हमने लिखा आईडी और यहाँ पे लिखा एज, ठीक है। अब आपको एंटर किया, अब देखिए यहाँ पर ये जो आईडी है, कैपिटल में जो मैंने एज लिखा था और जो मैंने स्मॉल में एज लिखा था, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग है। यहाँ पे देखिए 14 से स्टार्ट हुआ, यहाँ भी 14 से स्टार्ट हुआ। 306169 13088 है, यहाँ पे देखिए क्या है 12288 है। तो ये दोनों का आईडी क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब क्या, कैपिटल में एज और स्मॉल में एज जो लिखा है वो दोनों एक अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। और ये दोनों क्या है, एक वेरिएबल भी हैं जो कि स्टोर कर रहे हैं कुछ वैल्यू। हम यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा एज इज इक्वल टू, हमने यहाँ भी इस बार क्या लिखा 60 स्मॉल में, और कैपिटल एज वाले में हमने लिख दिया 40, एंटर किया। अभी हमने प्रिंट कराया दोनों एज की वैल्यू को,
हमने दोनों की फिर कैसे प्रिंट कराएंगे, एज लिखेंगे पहले, एज कॉमा अब यहाँ पे कैपिटल में एज, देखो दोनों एक साथ प्रिंट करा देंगे, एंटर किया तो देखो 60 और 40 प्रिंट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों की आईडी प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, आईडी, ठीक है, मैंने लिखा एज और कॉमा करके फिर लिखा आईडी और फिर यहाँ पे एज, ठीक है, और दोनों के बीच में थोड़ा हम गैप दे देते हैं, चलिए थोड़ा गैप देते हैं इसके बीच में, ठीक है, कॉमा यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्पेस दे दिया और इसको प्लस से ज्वाइन कर दिया, चलिए इसको ज्वाइन करते हैं प्लस से, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इसको एंटर कर देते हैं, देखिए सॉरी अनसपोर्टेड है, इंटीजर और स्ट्रिंग अनसपोर्टेड है, तो क्या करना है हमें, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो हम देखते हैं इसको वापस इसको लिखते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, दोनों को आईडी को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रिंट, यहाँ पे हमने क्या लिखा, आईडी, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, एज, इसको प्रिंट कराते हैं, ये देखिए आईडी प्रिंट हो रही है, फिर यहाँ पे से प्रिंट किया आईडी और इस बार कैपिटल में एज, ठीक है, तो देखिए इस बार कुछ अलग आपको आईडी देखने को मिली, जैसे ही हमने वैल्यू चेंज करी, ठीक है बेटा, ये ध्यान बहुत अच्छे समझिए आप इसको, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग मैं बता रहा हूँ जो कि आपको एग्जाम में भी पूछने को आता है। देखिए हमने क्या किया, पहले तो हमने जो वैल्यू इंसर्ट की उसके अकॉर्डिंगली आईडी हमको ये मिली, ठीक है, ये मिली, अब जैसे हमने वैल्यू चेंज की इसका आईडी भी क्या हुआ, चेंज हो गया है, देखिए यहाँ पे 4088 आ रहा है, यहाँ पे तो क्या होता है, वेरिएबल का नेचर क्या होता है, वेरिएबल आपका होता क्या है, इज अ टेम्पररी स्पेस, एवरी टाइम वेरिएबल चेंज इट्स मेमोरी, जब जब वेरिएबल बनेगा वो अपने मेमोरी की वैल्यू को चेंज करता रहेगा, मेमोरी की पोजीशन को चेंज करता रहेगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली जो उसका आइडेंटिफायर होगा वो भी चेंज होगा, ठीक है, तो चेंजेबल मेमोरी होता है वेरिएबल, जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है, चेंजेबल मेमोरी। अब अगर चेंजेबल मेमोरी है टेम्पररी, इसका मतलब कि वेरिएबल कहां पे बन रहा है, रैम, सिंपल, रैम क्या होता है हमारा, वोलाटाइल होता है, टेम्पररी होता है, तो वेरिएबल भी आपका कहां पे बनेगा, रैम पर स्टैब्लिश होगा, तो वेरिएबल इज इन पाइथन रेफर टू एन ऑब्जेक्ट, एन आइटम और एलिमेंट दैट इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी, कहां पे, मेमोरी में, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी अ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब, अब स्ट्रिंग का मतलब क्या हो सकता है, कोई भी, अब देखो वेरिएबल में हम किस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, चलिए हम एक बार फिर से चलते हैं अपने पाइथन वाले सेल पर, वापस हम ओपन करते हैं पाइथन, और मैं आपको बताता हूं किस किस तरह का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं अपने वेरिएबल पाइथन में, चलिए, अब वेरिएबल में अगर मुझे नंबर स्टोर करना है, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, सिंपल वेरिएबल लिखा, कोई भी हम नाम लिखते हैं, नंबर, हमने लिखा नंबर इज इक्वल टू, हमने दिया 58, ठीक है, 58, अब नंबर का टाइप क्या होगा बेटा, देखो TYPE लिखा, तो टाइप यहाँ पे क्या चेक करेंगे, किसका, नंबर का, तो आप देखेंगे इसका टाइप क्या दिखा रहा है, इस नंबर का टाइप क्या दिखा रहा है, इंटीजर, यानी कि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं अपने वेरिएबल में, चलते हैं वापस से, अब इस बार हमने लिखा नेम इज इक्वल टू अमित वर्मा, ठीक है, अब इस बार चलो वापस से देखते हैं कि इसका टाइप क्या है, हमने लिखा टाइप, क्या लिखा, नेम, अब देखो यहाँ पे क्या है, str, इसका मतलब क्या, ये जो वेरिएबल, ये जो वैल्यू है वो क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, इन्हें नंबर हमारा, हम नंबर स्टोर कर सकते हैं एज वेल एज स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, अगर हमें कोई और वैल्यू स्टोर करनी है, एवरेज इज इक्वल टू
78.56। अब एंटर किया। अब मैंने यहां पर क्या किया, वापस से टाइप किया और यहां पे लिखा AVG। ठीक है, एंटर किया। यहाँ पे देखो फ्लोटिंग, ये हमारा कौन सा वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यू है। ठीक है, तो किस तरह का टाइप हम स्टोर कर सकते हैं, हमने क्या किया, देखो इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट, यानी कि हम स्ट्रिंग वेरिएबल भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, नंबर वेरिएबल यानी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एज वेल एज फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा भी और सारी वैल्यूज भी हम स्टोर कर सकते हैं, वो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में अभी देखेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया। ठीक है, एलिमेंट दैट इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग। ठीक है, और एनी कॉम्बिनेशन, सॉरी यहाँ पे न्यूमेरिक, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर लाइक CD67। अब देखो CD67 कैसा वैल्यू होगा, कैरेक्टर वैल्यू का, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू भी हमारी हो सकती है। चलिए इसको स्टोर करते देखते हैं इसमें क्या आता है। ठीक है, CD67 में क्या आएगा, स्ट्रिंग वैल्यू ही आएगी हमारी, है ना। इन पाइथन वी कैन यूज द असाइनमेंट स्टेटमेंट टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल एंड असाइन अ स्पेसिफिक वैल्यू टू देम। इसका मतलब क्या, असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है हमारा। अब देखिए यहाँ पर बेटा आपको सिंपल एग्जांपल दिया, जेंडर। जेंडर यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल को हम आइडेंटिफाई किससे कर रहे हैं, जेंडर से कर रहे हैं। ये जेंडर हमारा एक आइडेंटिफायर भी हो सकता है। ठीक है, जिससे हम इस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या है, m। मैसेज एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है कीप स्माइलिंग। प्राइस एक वेरिएबल, इसकी वैल्यू क्या, 987.9। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा बेटा, वेरिएबल्स देखें। अब वेरिएबल्स को हम जैसे यहाँ सिंपल सा अभी जाते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे पाइथन में, अब हम स्क्रिप्ट मोड में जाएंगे, न्यू फाइल करेंगे, यहाँ पे इसको सेव करेंगे, और यहाँ पे हमने अपने फाइल का नाम इंट्रोडक्शन .py करके हमने फाइल का नाम लिखा। अब यहाँ पे हमने क्या दिया, सबसे पहले रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे दे दिया 11001101। ठीक है, ऐसा भी नंबर हो सकता है हमारा, या फिर 11 या 111, हमने 1101 से स्टार्ट किया, रोल नंबर हो गया। ठीक है, कुछ भी नंबर ले सकते हैं हम, सपोज हमने 101 करके हमने नंबर दे दिया। फिर हमने यहाँ पे नेम लिया, नेम इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे ले लिया आदिति सिंह। ठीक है, इसके बाद हमने एज ले ली, एज इज इक्वल टू, सपोज हमने 18 ले ली। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लास ले लिया, क्लास हमारा देखो वेरिएबल है। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्लास हमने लिया, जैसे ही क्लास किया, देखिए यहाँ पर रंग इसका चेंज हो गया। इसका मतलब ये पाइथन के अंदर एक रिजर्व्ड वर्ड है। ठीक है, क्लास, तो हम इस नाम से कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते, जो मैंने अभी आपको बताया। तो क्लास यहाँ पे क्या, एक रिजर्व्ड वर्ड है, तो क्लास को ना लेकर हमने एक हटा देते हैं एस को, तो अब रिजर्व्ड वर्ड हट गया मेरा। क्लास सपोज हमने यहाँ पे 10th कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पर परसेंटेज इज इक्वल टू 78.50, ये उसका परसेंटेज हो गया। ठीक है, अब इस डिटेल को सारा हमको प्रिंट कर देना है, तो प्रिंट मैसेज के साथ अगर प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम इज, यहाँ पे क्या लिखा बेटा, कॉमा किया, या फिर रोल नंबर, यहाँ पे मैसेज के साथ स्टूडेंट रोल नंबर इज। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, ROLL, रोल अंडरस्कोर नंबर। ठीक है, अब इसी की तरह से बाकी वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कंट्रोल C करते हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे नेम की वैल्यू कहाँ से आएगी, नेम से आएगी, यहाँ पे नेम लिख दिया। अब नेम के बाद क्या, एज है, तो यहाँ पे रोल नंबर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज इज। एज की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, हमारे एज वेरिएबल से आ जाएगी। अब क्लास,
क्लासेस, क्लास की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, हमको कहाँ से मिलेगी, क्लास से मिल जाएगी। और उसके बाद परसेंटेज, इस परसेंटेज की वैल्यू हमको कहाँ से मिल जाएगी, परसेंटेज से मिल जाएगी। इसको अब सेव करेंगे, ठीक है, अब इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रोल नंबर इज 101, नेम इज अदिति सिंह, ठीक है, स्टूडेंट एज इज 18, क्लास 10, परसेंटेज 78। तो इस तरह से मैंने आपको क्या बताया, वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं और कैसे हम प्रिंट करते हैं, वो मैंने आपको बताया बेटा। ठीक है, तो ये आपके पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर था। ठीक है, अभी पाइथन खत्म नहीं हुआ है, इट जस्ट अ बिगनिंग। ओके, इट जस्ट अ बिगनिंग, आई रिपीट द थिंग्स, इट जस्ट अ बिगनिंग। मैंने अभी आपको सिंपल इंट्रोडक्शन बताया है पाइथन का। अब आने वाली जो क्लास होंगी उसमें मैं आपको और भी इम्प्लीमेंट जो टूल्स हैं, जो टेक्निक है, प्रोग्रामिंग स्किल कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, सिंटैक्स कैसे यूज करेंगे, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पाइथन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग इट।